Okay, guys. Like we'll just wait 2 to 3 minutes for other roles to join in. Okay, then we'll start. ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर बाकी लोग जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे विल बी लाइक अपडेटिंग दैम अच्छा एक चीज और ये कि वे जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक मिड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग अच्छा और दूसरी चीज ये कि आप लोग जो है मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे सो फॉर दैट पर्पस if you want to type the thing type your answer it's up to you if you want to like participate by turning on your mic that's also good ठीक है और that is more feasible I must say लेकिन करना क्या होगा you need to like have a notebook along with you and you guys would be like just tracking down the question number and you'll like write the answer directly okay फिर हम लोग करेंगे ये कि by the end of the thing I'm just going to discuss few questions from respiration topic and I'll be like discussing few questions from photosynthesis as well okay so just let me know that my voice is audible to all of you right and the screen is also visible okay ठीक है बेटा so let's just start with this particular question this is question number 13 on my notebook and it says that like there is a diagram given of electron micrograph of a mitochondria and they have given the scale over here then they are saying that two stages of respiration occur in mitochondria these are the Krebs cycle and oxidative phosphorylation they are saying to complete the table below by naming the structure label A and B and stating which of the stages of respiration occur in each. अच्छा जी ए पे क्या मार्क होगा हमारे पास we just go into swipe into the structure A पे they have marked the matrix hopefully and B पे they have marked the membrane of the internal enfolding so I must say that the name of the structure for A is it is matrix and the B is the membrane of Christie. Christie is the enfolding, right?
and the stages of respiration are that occur in matrix. Any idea matrix में कौन सी process होता है? Yeah, Lee, I do remember this, and hopefully, like, I'll be like moving on by skipping a few questions. So just don't worry. Okay, जी. मैट्रिक्स में होता है आपके पास क्रैब साइकिल, और मेम्ब्रेन में क्या होगा आपके पास? मेम्ब्रेन में होता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. मैं यहाँ पे रिमाइंड करवाता चलूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस. मैं यहाँ पे ये रिमाइंड करवाता चलूँ कि भाई आपके पास जो प्रोसेस हो रहा है, जिसको आप कहते हैं ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर इनफोल्डिंग्स आ रही हैं लाइक दिस, ठीक है, तो आप ये मेंशन करना नहीं भूलिएगा दैट देयर आर प्रोटीन्स इन्वेस्टेड इन द मेम्ब्रेन. यहाँ पे आपके पास प्रोटीन लगे हुए होते हैं, और these proteins are responsible for electron transport chain. उनके पास इलेक्ट्रॉन जो आता है, that electron actually appears from reduced NAD and reduced FAD. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा है, उनके पास यहाँ पर प्रोटॉन भी आ रहा है इस चीज के लिए. And then they start revolving that electron proton from a protein to another, and then to another, and then to another, and by that ultimately they form ATP, or they phosphorylate a structure of adenosine diphosphate and convert that into ATP. Okay. I'm sorry for this. So, okay, they are saying that describe how structure of mitochondria is adapted to carry out these two processes. First of all, what you guys need to mention over here is कि इसके मैट्रिक्स में क्या होता है जो कि इसको हेल्प करता है रिएक्शन करवाने में. इसके मेम्ब्रेन्स क्या कर रही हैं, इसके अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या कर रहा है, ठीक है, और उसमें कौन सा ग्रेडियंट बन रहा है, एंड हाउ दोस ग्रेडियंट्स आर वर्किंग. एंड होपफुली कि इसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई whenever you're talking about the structure ना, the structure has specificities related to any reaction that it is carrying, and those specificities initiate by enzymes that they carry. So when they are talking about describe how the structure of mitochondria, beta, you need to mention सबसे पहले about the membrane. Mitochondria has its own membrane which helps. ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इसको हटाता हूँ. Mitochondria has its own membrane, and I'll just mention that this particular membrane differ, or it keep the difference between the matrix and cytoplasm. I'll also mention that the matrix has enzymes. And one more thing, that there are enfoldings which increase the surface area
And then we can also mention that there are enzymes in those enfoldings called cristae. कह रहा है कि भाई describe briefly the role of NAD in respiration. I think uh, like this is one of the finest or easiest thing to talk about. ये जो आपके पास प्रोसेस है, याद रखिएगा, एनएडी के अंदर से एटीपी बनाने का, यानी कि एनएडी से कन्वर्ट करने का एनर्जी को इनटू एटीपी, दैट इज ऑलवेज समथिंग जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. दैट इज ऑलवेज अ थिंग जो कि वो अलग अलग पैटर्न में पूछता है. So over here also the examiner is asking about what is oxidative phosphorylation or what do you know about oxidative phosphorylation. Okay. तो भाई it is hydrogen carrier, क्योंकि अब वो पैटर्न थोड़ा सा आपने उसी हवाले से कैरी करना है जैसे सवाल पूछा हुआ है. सही है. तो NAD क्या है? NAD इज हाइड्रोजन कैरियर. And it helps in electron transport chain. दूसरी बात that you need to know over here is that it initiates phosphorylation and its energy is used to form ATP. Okay. Describe how phosphorylation differ from the oxidative phosphorylation. तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास फॉस्फोराइलेशन में, मतलब जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है उसमें फोटो हमारे, तो इसलिए उसमें लाइट इन्वॉल्व होती है. ठीक है. मैं की पॉइंट्स में लिखता जरा जाता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें. इसमें लाइट इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियसली बात है. प्लांट में होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये. क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. ठीक है. आप बता सकते हो कि इट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और आप बता सकते हो कि ये स्टार्ट होता है बाय फोटो लाइसिस ऑफ वाटर. दूसरी तरफ और you have got oxidative phosphorylation, no light required. It occur in mitochondria. इसमें आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन does not evolve. वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो सकती है. ठीक है. Okay guys, so I was just thinking कि हम लोग कुछ क्वेश्चन स्किप करके चलेंगे, and I was thinking to skip this one, but can any one of you tell me that till which question we have done already? Ali, if you remember the exact question, one like exact question, if you remember that we are done with. I guess this is number 14.
Okay, so you're saying that we are done with question number 25. I don't think so कि हमने इतने questions करे थे. अच्छा, चलो ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, we'll just revise a few questions क्योंकि obviously फिर ये जो है ना हमारे लिए ज़रा फायदेमंद भी हो जाएगा. Okay, I'll picking up this particular question. This is like one of my favorite question. ये वाला. अच्छा भाई देखो. It's saying that the figure 1.1 जो कि नीचे मौजूद है अभी shows the Krebs cycle and the reaction preceding. ये आपके पास प्रोसेस है. अच्छा जी. Now when you're talking about this particular thing, इसको एक दफा पढ़ लो खाली साइकिल को and then we'll revise this particular thing. इसमें हो क्या रहा है? Let's have a look. Acetyl coenzyme is added with pyruvate and a reduced entity is formed. It add with, or you can say that oxaloacetate is added into the acetyl coenzyme. It forms citrate. That citrate forms another 6 carbon, then 5 carbon, then 4 carbon, then another 4, then another 4, then another 4, and then back to oxaloacetate. Okay, this is a basic thing. State precisely where Krebs cycle occurs in the cell. Guys, any idea where Krebs cycle occur in our body? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस हवाले से ही बात करी है. Yes, it occurs in the matrix of mitochondria. Okay, it's saying that decarboxylation reaction occur with letter X and dehydrogenation reaction occur with letter H. Hamza, you need to be specific in this pattern. You need to at least mention about matrix or matrix of mitochondria. ठीक है? अच्छा जी, जहां पे लेटर X है वहां पे आपके पास कहाँ गया भाई? डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है. here where is the letter X? हमारे पास लेटर X क्या भाई इसमें? Yes, besides matrix. अच्छा जी, coming towards the second part, it says that the लेबल करना है हमने लेटर X जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और लेटर H जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रही है. यहाँ पर कहाँ कहाँ पे मैं X लिखूंगा? डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ पे होगी? वहां वहां पे होगी जहाँ पे कार्बन नंबर रिड्यूस हो रहा होगा. सबसे पहला जो कार्बन रिड्यूस हुआ है वो सबसे ऊपर हुआ है. देखो यहाँ पे 3 कार्बन से ये 2 कार्बन बन गया. सही है. और फिर 6 से 5 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया. अगर H की बात करूं, डिहाइड्रोजनेशन की बात करूं, तो जहां जहां पे आपके पास NAD या FAD रिड्यूसर है वो H है. 1 2 3 4 एंड 5. सही है. ये 5 जगह हैं जहां पे आपके पास डाइन्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं. ठीक है. एंड दे आर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर
Dehydrogenation of the chain. Explain how NAD is regenerated. Guys, any idea about how NAD is regenerated? दोबारा से रीजनरेट होने का पहले तो ये देखो कि मतलब क्या है. सही है. This NAD actually move into oxidative phosphorylation, and good. Then it was actually in the reduced form. So over there in oxidative phosphorylation, it oxidizes. Okay, Ali acceptable है. फिर आप बता दो कि it oxidizes in electron transport chain and it gives off hydrogen ion or simply hydrogen, and NAD is received as oxidized NAD is received as end product. When proton activates the enzyme ATP synthesis to generate ATP. बिल्कुल लिंता हम ये भी कह सकते हैं. Linta is also right. But the thing is that you need to mention about the oxidation of reduced NAD to form simple NAD. That is the regeneration of NAD. And then you also need to mention about the electron transport chain. It's saying that state how formation of ATP in the Krebs cycle differ from the formation of ATP in oxidative phosphorylation. Any idea, guys? Part D. How formation of ATP in Krebs cycle differ from the formation of ATP in oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation में तो हो ही रही है आपके पास अलग तरीके से. Chemiosmosis, chemiosmosis कह सकते हैं, but you have to be a little bit more specific about this. एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ अलग हो रही है. उसके अपोज में कौन सी टाइप होगी फॉस्फोराइलेशन की? It should be substrate it is substrate level phosphorylation. Okay, guys. It says a state what is meant by the term respiratory quotient. Okay. अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे भाई? गाइस जल्दी जल्दी जवाब दो ना जरा, ताकि हम लोग स्पीड में चलेंगे. A little quick. State what is meant by the term respiratory quotient.
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं it is in simple words सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैंने पहले लिख दिया एक काम करता हूँ मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख देता हूँ इट इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम ऐसे होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड with number of moles of oxygen released ठीक है अब ये एक रिएक्शन हमसे पूरा करने को कह रहे हैं यहाँ पर एंड इट्स सेइंग दैट यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन ये बैलेंसिंग आप लोगों को आनी चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेन मार्क्स में स्ट्रेट मार्क्स मिलते हैं C18H36O2 and 26 oxygens are given मैं एक सिंपल सा आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट करके देता हूँ भाई एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एक तरफ वाटर आएगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर आएगा ये बता दो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड कितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए क्या कहते हैं आप लोग सर 26 ही होगा 26 क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 26 नहीं नहीं तुम ना O2 कैसे कह रही हो तो ऑप्शन तो यहाँ पर भी है वहां पे भी कोई नंबर लगेगा वो उससे ऐड हो जाएगा कार्बन को देखो इसके लिए यस अली इट शुड बी 18 एंड व्हाट अबाउट वाटर मॉलिक्यूल सिमरा वाटर का बताओ तुम कुछ आइडिया कितना हो जाएगा वाटर अब ऑक्सीजन देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन 18 मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुका है ऑलरेडी 18 into 2 is 16 और नहीं सॉरी 16 कह रहा हूँ 8 और 8 16 और 10 और 10 20 तो 16 और 20 36 ऑक्सीजन सिर्फ यहीं पर हो गए हैं यहाँ के अलग है पे वो ओके गाइस तो वाटर मॉलिक्यूल लेंता तुम क्या कहते हो 36 वाटर मॉलिक्यूल होंगे फिर वाटर मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए हाइड्रोजन 36 पूरे करने हमने और H के साथ 2 लगा हुआ है ऐसा कौन सा नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हाइड्रोजन बन जाएंगे गाइस कम ऑन यार सिंपल मैथ्स है क्या हो गया ये वाला 36 पूरा करना है यहाँ पे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 18 से यस इट्स 18 लेंथ ओके अली गॉट इट 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल फॉर्म सर ये पूरी इक्वेशन थोड़ी आप एक्सप्लेन कर दें क्योंकि वो मुझे सही से वैसे ये आता नहीं था थोड़ा तुम देखो confusion। C18H36O2 was given with 26 oxygen molecules and they asked to balance it so आपने कहा कि यार इसके अंदर 18 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे और 18 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे अगर तुम काउंट करो कार्बन नंबर 18 था उस समय यहाँ पे 18 रख दिया तो ऑक्सीजन जो है ना वो ऑटोमेटिकली 36 हो गया यहाँ पर और यहाँ पे हमने 18 रख दिया 36 प्लस 18 हो गया तो 26 इंटू 2 हो रहा है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है 36 यहाँ पे मौजूद है हमारे पास 36 सही है और वहां पे हमने क्या किया वहां पे H2 मौजूद था उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आपके पास सिमिलर क्वांटिटी आ गई ठीक है जब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकाला जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि आप ऊपर रखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को नीचे रखोगे O2 की कंसंट्रेशन या मोल को तो भाई ये ऊपर 18 आ गया और नीचे आ जाएगा 26 अगर कैलकुलेट करोगे इसका आंसर कोई 0.699 के करीब आएगा दैट मेक्स अराउंड 0.7 और इस तरह का जो 0.7 बनता है उसका मतलब होता है कि यार ये कोई किसी किस्म का लिपिड था
मतलब है, सही है। लिपिड भी कह सकते हैं, फैट भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं, फैट में फैटी एसिड भी कह सकते हैं। सर ये कौन से ईयर का पेपर है एंड कौन से उसका? यार एयर तो बेटा मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन वाइज नहीं याद, लेकिन ये जो इसके अंदर कलेक्शन डेवलप हुई हुई है, दिस इज फ्रॉम 2010 टू 2015। सही है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, सही है, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं फिर। अब हमारे पास आ जाएगा explain why carbohydrate releases half as much energy as per unit mass as fatty acid and oils। भाई बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करो, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप लोग दें। कार्बोहाइड्रेट में ये टॉपिक जो है ना रेस्पिरेशन का चल रहा है, लेकिन ये सवाल कुछ जो पूछा गया है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पूछा गया है। कहे कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस हाफ एज मच एनर्जी एज पर यूनिट मास एज फैटी एसिड एंड ऑयल्स डिड। सो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? आपने खाली कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड का वो डिफरेंस बताना है, जिस बात पे एक में एनर्जी ज्यादा और दूसरे में एनर्जी कम है। एनर्जी हमेशा देखो बॉन्ड्स में होती है, तो आप बॉन्ड्स की बात करोगे यहाँ पे। आप ये कहोगे बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हैज लेस अमाउंट ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देन फैटी एसिड, उसमें कार्बन नंबर ही ज्यादा है तो वो भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड दिया, लेस देन दोस फैटी एसिड्स। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि भाई O2 मैंने लिख तो दिया, ये लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपको पूरा ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। O2 या इस तरह से बीच में CO2 नहीं लिखना। यहाँ पे मैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लिख तो रहा हूँ, वो चल जाता है क्योंकि वो कार्बन के हवाले से बॉन्ड बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन O2 एग्जैक्टली नहीं होता ना। अगर आप कह रहे हैं ज्यादा O2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल के तौर पे ज्यादा है, ऑक्सीजन ओवरऑल ज्यादा है या ऑक्सीजन ओवरऑल कम है, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड कर रही है। लेसर ऑक्सीजन बेटा फैटी एसिड में हो गया। हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले फैटी एसिड में 2-3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो ठीक ठाक होता है, सही है। Okay guys, read this as well. What's it saying? It's saying that carbohydrate and lipids are important fuel in generating ATP in animal cell. Explain the relative energy value of carbohydrate and lipid as respiratory substrate. I'm waiting for your answer, guys. Come on. इतना मुश्किल नहीं है। It's saying that explain the relative energy value of carbohydrate and lipid as respiratory substrate. अभी बात हो चुकी है इस पे। सर वही बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट में जो आपने ऊपर बताया था हाँ कि वही बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड्स और ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम बताओगे कैसे? अब यहाँ पे क्या पैटर्न होगा? वही पैटर्न होगा वहां पे, तो तुम बकायदा उसको
रिलेट कर रहे थे ना, अगर तुम दोनों क्वेश्चन देखो तो दोनों के क्वेश्चन के पैटर्न में फर्क है। दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ो जरा। Explain why carbohydrate releases half as much energy as much energy per unit mass as fat and oil. यहाँ पे explain the relative energy value of carbohydrate and lipid as respiratory substrate। तो मैं कोई एनर्जी एग्जैक्ट बताने के बाद नहीं कि यार इसमें 200 मिलेगी उसमें 400 मिलेगी, ऐसा नहीं है। But you need to be like a little bit specific about this कि when you're talking about, when you are actually talking about the relative energy value of carbohydrate and lipid, आप मेंशन करोगे कि भाई there we have less reduced carbohydrates, carbs लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा बेटा। then we have got less amount of hydrogen अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, we have got less carbon to hydrogen bonds। सर ये लिपिड का बता रहे हैं ना? ये मैं आपको सर ये कार्बोहाइड्रेट के बता रहा हूँ। अच्छा सही ठीक ठीक। है, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके पास लेस रिड्यूस्ड कार्ब्स होते हैं, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कम हाइड्रोजन होता है, उसमें कम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और फिर आप बताओगे कि भाई ये जो है ना आपके पास दे कैरी लेस एनर्जी they carry less amount of energy per unit mass सर ये तो and लिपिड का है ना कि दे कैरी बेटा लेस अमाउंट, ये तो लिपिड का है ना दैट दे कैरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। no, this is for इस carbohydrate, अच्छा सही। क्योंकि लिपिड में तो एनर्जी ज्यादा होती है। और दूसरा तुम यहाँ पे मेंशन करो कि एनर्जी इज more in lipids or fats because of more bonds। ठीक है, होपफुली ये 3 मार्क्स के वाले से इनफ होगा और समझ में भी आ गया होगा। अच्छा जी, अब जरा ये पढ़िएगा। It says that aerobic respiration use oxygen and produces carbon dioxide as a waste substance. Animal cell metabolism can be analyzed using the respiratory quotient RQ. The RQ is the only volume of the carbon dioxide produced divided by the volume of oxygen consumed. Okay guys, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना अपना यहाँ पे और मुझे बताओ जल्दी से फिर। ये तो याद होगा गाइस, मुझे जरा मारिए, तुम जवाब दे दो जल्दी से। और मारिए के अलावा और कौन जवाब देगा? लिंदा तुम भी बताओ और सिमरत तुम भी बताओ। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की वैल्यूज बताओ। अभी हमने लिपिड की तो वैल्यू कैलकुलेट करी है। और ये वैल्यूज आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज पूछी जा सकती है, या वो ये पूछ लेंगे जो आपका आंसर आ रहा है उस हिसाब से,
जो आपका स्ट्रक्चर है जिसकी आपने आर की वैल्यू निकाली है वो क्या था? Was it a lipid? What is a carbohydrate? Or was it a protein structure? Come on यार, I'm waiting for your answer. चलो मैं बता देता हूँ. कार्बोहाइड्रेट के लिए it's 1. 1.0, 1.0, हाँ 1. Okay. And for lipid it is 0.7. 0.7. 0.7. Okay. सर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की, ये तीनों की याद ही करनी है ना? हाँ ये तीनों याद करनी है. प्रोटीन भी याद कर लो. 0.9 प्रोटीन की होती है. ठीक है. ठीक है. अच्छा जी. The Siberian hamster, a small rodent like a mouse, has had its RQ measured at different air temperature. Shows the result of this experiment. This particular figure is showing the result of the experiment. ये क्या कह रहा है कि भाई 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर थे, 10 पे वहीं पे थे, 15 पे थोड़ा रेज हुए, 20 पे काफी रेज हो गए, 20 से लेके 25 तक के दरमियान जो था उसके अंदर तो भाई एकदम से आपने पीक पे पहुंचना शुरू कर दिया. और उसके बाद जो है 25 से ऑनवर्ड्स आप फौरन जंप कर गए. कहाँ पर? हाँ बेटा लिंदा, ये वैल्यूज तीनों बुक में लिखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसी लिखी हुई हैं. ये यहाँ से जंप कर गए कहाँ पे? फ्रॉम राइट अवे फ्रॉम 0.8 टू 0.9. ठीक है. अच्छा जी. अब सवाल क्या है? ये तो ग्राफ हो गया. Can I use the information in figure 1.1 describe and explain the relationship between RQ and air temperature? As the RQ increases, like the air temperature increases, तो मतलब it's क्या बोलते हैं उसको, proportion, थोड़ा सा क्लियर करो like तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा. मतलब अ, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहना चाह रहे हो? आई थिंक सो. नहीं, इनवर्सली तो वो नहीं होता कि एक इंक्रीज हो रहा है तो द अदर डिक्रीजेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. That is yeah, that is directly proportional. Inversely proportional यहाँ पे I don't think so that we can relate. It's saying that using the information figure 1.1 describe and explain the relationship between RQ and the air temperature. आपने सिंपल सी एक बात बोलनी है कि RQ remains stable from 3 to 10 degree centigrade as shown in this graph. पहले स्टेबिलिटी की बात कर लो. सही है. Oh, it's not writing properly. Just wait. Stable from 3 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर उसके बाद क्या हुआ? टेन टू 20 में आपके पास स्लाइड चेंज है. स्लाइड चेंज कितना है कि आप जो है वो 0. कितने पे ई कहलाएगा? आई गेस 0.7 से 0.5 से 0.74 से आई गेस यू स्टार्टेड. 0.74 से आप जो है वो जंप कर गए कहाँ तक? अराउंड टिल 0.75. सही है. या 0.75 से भी ऊपर जा रहा है आई गेस 0.7. या इट इज 0.76. सही है. स्लाइड चेंज कैसा है? फ्रॉम 0.74 टू 0.76. और फिर उसके बाद there was a drastic change. Drastic wouldn't be a good term to use.
आप कह सकते हैं शार्प चेंज फ्रॉम 20 to 25 degree centigrade, and that was like a कहां से कहां तक गया इसमें, फ्रॉम, इसको मैं नीचे करूं जरा, फ्रॉम 0.76 to 0.8 I guess. और फिर उसके बाद 25 से ऑनवर्ड्स till 0.91. ठीक है अली, but that's like we need to give the reason. Okay, it's saying that state what state of circumstance under which the RQ value would rise to over 1. ऑप्शन डी का जवाब क्या पॉसिबल है भाई? ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है फैट्स में। ऐसा आपके पास ड्यूरिंग हाइबरनेशन होता है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है आपके पास ये इन्फिनिटी पे चला जाता है कब? एट द टाइम ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सर वो ऊपर वाले में आप जो बोल रहे हैं लाइक कार्बन जो होता है लिपिड्स हाँ हाँ में, हाँ, तो मतलब कैसे होता है? बिकॉज कार्बन के वैल्यू इट्स लाइक राइज ओवर, इट्स लाइक ऊपर। सर ऊपर खड़े 2 मिनट, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं सही से। एक मिनट वापस पकड़ता हूँ वही। It's saying that stated circumstances under which the RQ value would rise to over 1. ओवर वन मतलब लाइक एक 1 से ऊपर? 1 से ऊपर। अगर अच्छा सही कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड में ठीक है। कन्वर्ट हो, कार्बोहाइड्रेट must be having its own RQ, ऑन okay अली सुनो, और फिर लिपिड would be having its own different RQ value, तो वो तो ऐड मतलब हो जाएगा। कार्ब की वजह से 1 होती है तो लाइक इंक्रीज हो रही है, बिकॉज लिपिड की 7 होती है। सो एग्जैक्ट, इन दैट इंक्रीज पूछ रहा है ना कि कहाँ का इंक्रीज होता है? तो वो लिपिड और, अच्छा सही है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन में नहीं होगा? क्योंकि हो लिपिड, सकता है, लिपिड एंड प्रोटीन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट बिकॉज एंड लिप, प्रोटीन भी हो सकता है। सही है, ठीक है। लोग तो वो लिख रहे हैं जो कॉमन है, सही है, जो होता है कॉमनली हाँ, होने को, तो बाकी भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें शैल वी। यस यस। अच्छा जी, आई वुड सजेस्ट कि एक दफा ये जरा तुम लोग पढ़ लो, इसका जवाब लिखो, सही, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू गाइस।
और इसका ही जवाब नहीं बल्कि इसके अगले क्वेश्चन का भी जवाब लिखो। इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अभी, चलो पहले से इसका पार्ट लिखो। When you're done with these 3 points particularly, just do let me know. I'll discuss this answer. I'm giving you like around 1 minute 30 seconds for this. Start हो जाओ जरा जल्दी से. Read properly. Do read it properly, okay? Okay, guys. Hopefully that you're done with the answer to this question. Particularly in Arabic respiration, the Krebs cycle is regarded as a series of small steps. One of these steps is conversion of succinate to fumarate by an enzyme called succinate dehydrogenase. State the role played by the dehydrogenase enzyme in the Krebs cycle and explain briefly the importance of this role in the production of ATP. अगर आप में से प्लीज कोई अपना बच्चा माइक ऑन करके बताए मुझे जरा कि क्या कंडीशन होगी इसकी, क्या जवाब बनेगा। सिमरा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट बेटा? नहीं सर, मैंने तो उतने डिटेल में क्रेब्स साइकिल बस पता नहीं, मुझे नहीं पता अब। चलो कोई बात नहीं। हानिया एंड मारिया, एनीवन? भाई कम ऑन यार, अली का माइक खराब है। अली इज लाइक टाइपिंग द आंसर। अली तुम टाइप करके अगर बता सकते हो कुछ की पॉइंट्स बता दो। हाँ भाई अली। नहीं यार, ऐसे ऐसे मजा थोड़ी आएगा। इस वक्त तक तो आप लोगों को इतना हो जाना चाहिए ना दैट यू गाइस कैन लाइक परफॉर्म दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या 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 रहा है वो मैं बताता हूँ जरा। हाँ ओके, एनएडी इज रिड्यूस, गुड। देखो भाई वो कह रहे स्टेट द रोल प्लेड बाय डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन द Krebs cycle and explain briefly the importance of this role in the production of ATP. अल्टीमेटली वो तुमसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही पूछ रहा है। सही है, उसने एक बात जहाँ से शुरू करी है वो एक पॉइंट पर्टिकुलरली ऐड कर दिया उसने। उसने बोला डिहाइड्रोजनेज के बारे में आप जानते हो या नहीं। आप हो सकता है आपको नहीं समझ में आई है, बट व्हाट यू नीड टू नो इज दैट देयर इज एन एंजाइम which is actually dehydrogenase आ गया। अगर उसके साथ ये टर्म dehydrogenase आ गई तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो एक जगह से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और किसी दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करेगा। सही है, तो आप कह दोगे दैट दिस इज एक्चुअली टू प्रोवाइड प्रोटॉन और सिंपली टू प्रोवाइड हाइड्रोजन। दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक्सेप्टेबल है, चलेगा। सही है, अच्छा जी। ओके, NAD is reduced by hydrogen, ठीक है अली। रिड्यूस्ड अली जो जवाब दे रहे हो तुम मुझे मतलब प्राइवेट में दे रहे थे। चलो अच्छा मैं बताता हूँ बाकियों को भी। रिड्यूस NAD सर कैरी हम लोग इसमें हाइड्रोजन टू एनएडी और इलेक्ट्रॉन। एनएडीएस वाला प्रोसेस नहीं बताएंगे? कौन सा वाला बेटा? एनएडी और एनएडीएस जो बनता है वही बताना है, बिल्कुल वही बताना है। और फिर ये भी बताना है कि उससे आगे फिर क्या होगा, उससे ATP कैसे बनेगा, ये भी बताना है। सही है, तो पूरा reduce वो NAD थर्ड स्टेप बताना है। hydrogen to electron transport chain and NAD is regenerated. Reduce FAD is formed or not? अच्छा ये तुम पूछ रहे हो आई गेस। ओके, this causes oxidative phosphorylation, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा जी मैं इसको कंप्लीट कर दूं। टू प्रोवाइड प्रोटॉन हाइड्रोजन
चली गई स्क्रीन, ओके। टू प्रोवाइड प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन, या कुछ भी कह लो इसको, सही है, या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कह लो, सही है, और H पॉजिटिव कह लो इसको, सही है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हाइड्रोजन लेस एक्सेप्टेबल होता है। फॉर्म करेगा ये, इट फॉर्म्स reduced NAD, क्या करेगा ये, which moves into electron transport chain। सर NAD कहाँ से आ गया? FAD नहीं था? NAD FAD दोनों आ जाएंगे ना, चलो अच्छा इसको भी कर दो, reduce NAD and reduce FAD, अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है। तो अगर अच्छा, दोनों में से कोई एक लिख दें तो प्रेफरेबल है ये कि सेम। तुम NAD लिख दो, और अगर तुम FAD लिख दोगे, दोनों लिख दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई एक लिख दोगे तो FAD नहीं लिखना, पहले पहले NAD लिखना। वैसे तो मैं ओके ये सही बोलूंगा है। भाई दोनों लिखो, ताकि कोई गुंजाइश ही नहीं बचे ना उसके पास कुछ उल्टा सीधा सोचने के, मार्क्स वार्क्स काटे हो बेचारा, सही है। सो it forms reduced NAD, it forms reduced FAD, which moves into electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो वो क्या करवाएगा वहां पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, इट फॉर्म्स लाइक, it forms ATP। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैं बता दूंगा, वो इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेगा, सही है। अच्छा जी, ये वाला पार्ट में सजेस्ट करूंगा कि पार्ट बी जो है, चलो ये अभी ग्राफ से रिलेटेड, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, दिस डायग्राम इज शोइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी जैसे आप लोग बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे, जान पहचान हो गई होगी। एक दो तीन, तीन फॉस्फेटाइन लगे हुए हैं, पेंटोज शुगर लगी हुई है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, एडेनिन, ठीक है भाई। नेम द नाइट्रोजनस बेस लेवल बी, ये तो सबको ही पता है, मैं फौरन से लिख देता हूँ फटाक से, एडेनिन। नेम द शुगर लेवल एस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बेटा वो है, क्या कहूँगा मैं, एक डिस्क्रिमिनेशन कह लो इसको, या सॉर्ट ऑफ लाइक के, आप क्या लिख सकते हैं, लिखने को मैंने वहां पे लिख दिया पेंटोज शुगर, ठीक है भाई, लेकिन बेटा ये पेंटोज शुगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पेंटोज शुगर लाइक इट कैन गेट रिजेक्टेड, सही है। सर पेंटोज, राइबोस होगा। पेंटोज इज नॉट स्पेसिफाइड ना, पेंटोज एक अनस्पेसिफाइड एलिमेंट हो गया, तो तुम यहाँ पे लिखोगे राइबोज शुगर, राइबोज लिखना जरूरी है, डीऑक्सीराइबोज नहीं लिखना, सही है, राइबोज लिखना। और दूसरा ये कि यू कैन नॉट राइट राइब्यूलोज, राइबोज ही चलेगा, राइब्यूलोज भी उसकी आइसोमेरिक फॉर्म होती है, वो भी नहीं चलेगा। बेटा तुम कुछ कह रहे थे आई गेस लिंता? जी मैं राइबोस ही कह रही थी। अच्छा चलो ठीक है, परफेक्ट है। सवाल पढ़ो, ये बहुत मजे का सवाल है। ATP is described as having a universal role as an energy currency in all the living organisms. Explain why it is described in this way। वो तुमसे ATP के बारे में जानना चाह रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है भाई ATP को जानते हो, और फिर वो पूछे क्या जानते हो ATP के बारे में तुम। तो अगेन गाइज 4 मार्क्स का लिखना है, आई वुड सजेस्ट कि तुम इसके ऊपर तकरीबन 5-6 मार्क्स, 7-8 मार्क्स से तो लिख सकते हो, सही है। तो जरा लिखो जल्दी से, मैं तुम्हें फिर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखना शुरू करो अपने पास पॉइंट्स, और फिर इस दफा आप लोग माइक ऑन करके अपने अपने पॉइंट्स शेयर किए, भले सही हो या गलत हो, ठीक है बेटा। So just start writing your points related to this question, that in which you need to describe the properties of ATP.
So are you guys done with the formation of answer for this question? सर पॉइंट्स लिखें की पॉइंट लिंदा तुम्हारी आवाज बेटा नहीं आ रही प्रॉपर्ली. Okay, are you saying ATP releases energy upon hydrolysis? Each phosphate when separated releases sodium by kilojoules from the last phosphate. Linda, there is some problem with your mic. उसमें बहुत disturbance आ रहा है. I guess अब सर सही है. पास हाँ अब सही है. बोलो जोर से बोलो थोड़ा. अच्छा मैं कह रही हूँ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में यूज होता है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में डायरेक्टली कहाँ से जंप कर गए? तो वो तो तुमने एनर्जी का यूज बताया हमें. वो ये नहीं बोला. वो बोला ATP is described as a universal as having a universal role जी as the Sir, energy currency in all living organism. Explain why it is described in this way. They're not asking you the applications. They're asking like how it functions to gain or to like report about energy, to sir, provide synthesis energy. of nucleic acid. Sir, Mm, synthesis of nucleic acid. Sir, ATP hydrolyzes नहीं. or loses its phosphate group हाँ, due to which exactly. energy is released and ADP is converted to ATP. गुड. सही है. और मैं एक एक करके पॉइंट लिखते जाता हूँ. वैसे अली ने ना तकरीबन मेरे ख्याल से पूरा ही जवाब मुझे भेज दिया है टाइप करके. अली और हानी सर अब आपको तक टाइप करके दें क्या करें? टाइप करके दें या वो वॉइस पे ना ना भेजें ना वर्बली एक्सेप्टेबल है. वो अली का माइक नहीं चल रहा, उसमें इसने बेचारे ने टाइप किया. चलो I'll just go on with the key points. Okay, just follow करो. सबसे पहले क्या होगा कि whenever ATP is hydrolyzed, सर energy एक पॉइंट है जो समझ नहीं आया releases. हाँ बोलो. जैसे इसमें इन्होंने हमसे ये पूछा है कि एटीपी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी क्यों है तो ये हम हाँ इसमें ये कह सकते हैं ना कि ये हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए जो लाइफ फॉर्म में अकर होते हैं बिल्कुल 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 सेकंड ये हम ये कहते कह सकते हैं कि ये वाटर सॉल्यूबल है स्मॉल है तो थ्रू आउट ठीक है द सेल कैरी हो सकता है ठीक है. हम ये और कहेंगे ना कि throughout the cell present है. जी मतलब ये मैं तुम्हारा एंड पॉइंट, it is present throughout the cell. और जो इसकी कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा है तो वो मतलब जल्दी जल्दी रीजनरेट हो जाता है हाँ सही है. easily regeneratable. नहीं मतलब regeneratable एडीपी और generate एटीपी हुआ में है. जो कन्वर्जन रेट है हाँ हम ये कह सकते हैं इसको रैपिड टर्नओवर है इसका. ओके सही है. ये एक आपके पास मार्किंग स्कीम की टर्म है रैपिड टर्नओवर. सही है. और एक तुम्हारा और पॉइंट था दैट वाज दैट इट इज सॉल्युबल. सही है. इन वाटर ताकि ये आसानी से सेल में इजीली इट कैन मूव इन द सेल इजीली. और अली का भी एक पॉइंट मैं उठा रहा हूँ. अली सेइंग दैट when each phosphate is separated except for the last phosphate there is a certain amount of energy given. This energy can be used for a variety of reactions. हमें वो variety of reaction अलग अलग हम नाम देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी. अगर हम एक नाम भी लिख दें वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है. सही है. So I'll be Sir, picking मैंने up this one. It provide energy can be used for sodium potassium pump. सही है. ये एग्जांपल मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज़ दिस इज एग्जांपल प्रेजेंट इन योर बुक, कोर्स बुक जो है ना Sir, आपकी वो मैरी जोन्स. हाँ बेटा बोलो. वो synthesis of nucleic acid नहीं होगा like इसका like काम है ATP का रोल नहीं है कि important और सर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस सिंथेसिस आएंगे ऑफ इसमें न्यूक्लिक एसिड बेटा एक एक करके. सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है वो बिल्कुल सिर्फ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें इसका प्रोसेस है. आई अंडरस्टैंड दैट बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे
वो सारी चीज़ों को नहीं लाइन अप कर सकते, या हम सारे प्रोसेसेस का नाम नहीं यहाँ पे रख सकते, हम कोई एक या दो प्रोसेस रख लेंगे, सही है। और हम सही। सारी एनर्जी यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसीलिए रिमूवल ऑफ वन फॉस्फेट की एनर्जी मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा। रिमूवल ऑफ वन फॉस्फेट, removal of one phosphate. I don't know why it's not working. Oh. Removal of one phosphate produces 30.5 kilojoule per mole. Unit is must energy. आई गेस अब तक तो 1 2 3 4 5 6 मार्क्स तो हो गए ना हमारे, बस काफी है, सही है। एनर्जी करेंसी, ओके ठीक है। इन मैनी प्रोसेसेस, ठीक है। State precisely two places where ATP is synthesized in the cell. बताओ भाई, जो दो जगहों के नाम बताओ। मैं अगर कहूँ आपसे दो से ज्यादा बता सकते हैं आप, तो दो से ज्यादा बता दीजिएगा, प्लीज गो अहेड, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर एटीपी इज माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसाइज्ड, बिकॉज बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सिंपल पैटर्न के अंदर आपके पास एक फॉस्फेट आयन अटैच हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ। So come on, mitochondria is one of them. Okay, Simra. माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जरा थोड़ा सा प्रिसाइजली बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही दो जगह हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में भी होगा, मैट्रिक्स में, और वो और क्रिस्टे में। क्रिस्टे में। क्रिस्टे में एटीपेज एंजाइम होता है वहां पे। और बताओ भाई, और कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। थैलाकोइड को भूल गए आप लोग? थैलाकोइड मेम्ब्रेन अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला रही थी, वो भी तो ये काम कर रही है। और इसके अलावा एक और जगह है जहां पे हम लोगों ने कभी इसको डिस्कस नहीं किया, साइटोसोल। साइटोसोल इज द सॉल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर भी आपके पास जो है ना वो एटीपी सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है गाइस। साइटोप्लाज्म, यस अली, हमने डिस्कस नहीं किया कभी ऐसा कि साइटोप्लाज्म में कैसे होगा, क्या होगा, बट होता है। अच्छा जी, there is like during the process of glycolysis, glucose is converted by a series of steps into two molecules of pyruvate. And when we just outline the process of glycolysis, the glucose is converted into two triose phosphate by forming hexose phosphate and hexose biphosphate, and that it forms intermediates, and those intermediates end up in pyruvate or pyruvic acid. सही है जी। Yeah, with reference of the diagram of the figure, state the process occurring at step 1 and 2, step 3 and 4. So ये जी 1 और 2 पे क्या हो रहा है? Step 1 और 2 में आपका phosphate add हो रहा है. So whenever phosphate is added, the process is called phosphorylation. phosphorylation. Good. स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? ये याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एग्जैक्टली एक एक स्टेप के ऊपर तुम लोगों को उसके एंजाइम और उसके प्रोसेस के बारे में बताया था। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 3 भी देख लो और 4 भी देख लो। 4 भी बताना होगा ना अभी थोड़ी देर में, तो 3 और 4 दोनों देखो और फिर मुझे बताओ 3 में क्या हो रहा है और 4 में क्या हो रहा है। सर 4 में तो हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे ना? हाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस का एक और उल्टा भी तो नाम है, मतलब ये तो डिहाइड्रोजनेशन को और क्या कह सकते हो तुम? ऑक्सीडेशन। अरे वाह, क्या बात है भाई, ऑक्सीडेशन। और सर वो स्प्लिटिंग वाले को क्या कहेंगे? तुम बताओ, मुझे नहीं पता। एग्जाम में तुम लोगों ने बैठना है, मैंने थोड़ी जाना है। तो अली आप बताएं ना। मैं तो बता दूंगा, अल्टीमेटली मैंने ही बताना है। स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तोड़ने के लिए आइसोमराइजेशन पता नहीं। नहीं, आइसोमराइजेशन अलग होता है, वो तो आइसोमर बनाने को कहते हैं। तोड़ना है, तोड़ना, सोचो
whenever you are breaking up anything that break is down, लिंक chemical लिंक process, that is रिएक्शन called लिंक रिएक्शन नहीं लिंक रिएक्शन नहीं uh रिमूवल हाँ अली करीब करीब पहुंच गए हो, बिल्कुल करीब। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस यार ग्लाइकोलिसिस तो पूरा प्रोसेस है ना, जैसे अली हाइड्रोलिसिस कह रहा है, सही है मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन यार फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। खाली लेसिस कह दो चलेगा, अच्छा ठीक है। स्प्लिट हो रहा है ना, खाली लेसिस कह दो चलेगा वो भी, ठीक है। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ग्लूकोज नीड टू बी कन्वर्टेड टू हेक्सोज बाय फॉस्फेट। ये बड़ा मजेदार सवाल है, और ये अकेला नहीं आ रहा है, ये मतलब ये वाहिद दफा नहीं आ रहा है, ये रिपीट हुआ है, काफी दफा रिपीट हुआ है। Explain why glucose need to be converted to hexose bisphosphate. सर रिमूवल ऑफ नहीं एडिशन होगा नहीं तो अच्छा ओके, और पता नहीं देखो मैंने बताया हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 सही है, कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 में, एक फॉस्फेट इधर एक फॉस्फेट इधर, दोनों टर्मिनल्स पे फॉस्फेट लगे, तो क्यों तो लगे सर बताओ? एटीपी फॉर्म हो रहा है है नहीं 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 नहीं, नहीं फॉस्फेट बायफॉस्फेट ऐड हो फॉर्म रहा हो है रहा ना है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, एटीपी तो टूटता है, एटीपी टूटा था, उसने एडीपी बनाया और उसने अपना फॉस्फेटाइन इसको दे एक दिया, फॉस्फेट ऐड हुआ और ये हेक्सोस बायफॉस्फेट बन गया, जो कि पहले हेक्सोस फॉस्फेट था और उससे पहले खाली हेक्सोस था, तो उससे पहले भी एटीपी दिया, एडीपी बनाया और फॉस्फेट आयन यहाँ पे दे दिया। ठीक सर है गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट बोलो ना, बात तो तुम सही कह रही हो। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सही है, थोड़ा सर अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल को ज्यादा और रिएक्टिव करने के लिए, ताकि वो ज्यादा एनर्जी रिच बने। ओके, टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, और हाँ ये तुम्हारा पॉइंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, टू एक्टिवेट द स्ट्रक्चर, ताकि वो so that it could be splitted, so that it can split. ओके जी, चले भाई चले आगे दौड़ेंगे। सही है यार, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते जा रहे हैं पास पेपर्स में, ऐसे ही चलता रहा तो सही है, नॉट बैड, लेकिन स्पीड स्लो है हम लोगों की, वाकई में इस चीज को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, ताकि फिर बाय द एंड ऑफ द सिलेबस हमारे पास ईयरली पास पेपर करने का टाइम हो, एटलीस्ट 20 ईयर्स, ठीक है, और एक साल के अंदर कम से कम 6 पेपर्स होते हैं, याद रखना। ओके जी, pyruvate can enter a mitochondria when oxygen is present. Describe what happens to the pyruvate in a yeast cell when oxygen is not present. भाई simple वो तुमसे पूछ रहा है anaerobic एनाएरोबिक respiration, रेस्पिरेशन ठीक है भाई। सर anaerobic respiration in yeast कौन सी होती है, कौन सी fermentation कहलाती है ये भी बताओ ना? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ना, यस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हमने डिटेल में समझा देनी है यहाँ पे, 2 पॉइंट्स और इसके 3 पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर देना जिसमें बता देना इथेनॉल एल बना, फिर इथेनॉल बना, उसको बनाने के लिए जो रिड्यूस्ड एनएडी था उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ा है, हमारी एनर्जी और ज़ाया हो गई, तो हमें बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस सिर्फ 2 एटीपी मिले, ठीक है, जी समझ में आ रहा है? सर वापस से थोड़ा स्लो करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ मैं बता देता हूँ, देखो भाई, और C6H12O6 था, ठीक है, इससे बना
उससे 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 बना पायरुवेट, सही है। और पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में, एल में, और उस इथेनॉल से बना इथेनॉल जो कि था एक अल्कोहल। और बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसेस था पायरुवेट से इथेनॉल बनने का, उसमें तुमने उसको दिया एक रिड्यूस्ड NAD, और वो खाली NAD में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी ज़ाया हो गई, सही है। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो इसको बेसिकली वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे फिर हम। हाँ, ये चीज़ आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय ठीक है। 2 क्यों? सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों? सॉरी आयशा, तुम्हें आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ पा रही बेटा, जोर से बोलो थोड़ा। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? Because 1 6 carbon compounds makes 2 pyruvate, na? That will make 2 ethanol and will make 2 ethanol. Okay, sir, got it. Okay. Okay, yeah, this is amazing. Glucose split हुआ तुम्हारे पास, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही आ गया दोबारा से। आई गेस कि अब ये तुम लोग कर सकते हो, ये सेल के अंदर है, ये प्रोसेस बता सकते हो। ये प्रोसेस जो है ना बुक की डायग्राम है, सही है। मैं तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सही है। और मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तुमने बताना है कौन से वाले में क्या लिखा। 5 उसके लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है, हर एक उसके लिए 50 सेकंड ले लो, सही है। चलो जल्दी से मार्क करो बेटा, लिखो अपने अपने पास लिखो, ताकि आई विल बी आस्किंग दैट आफ्टर 1 मिनट, ओके। ओके भाई, आई होप दैट यू गाइस आर लाइक डन विद दिस। मुझे बता सकते हो 1 पे क्या है? कोई बच्चा बताएगा? व्हाट्स ऑन 1? ओके, reduced NAD, ठीक है अली, जबरदस्त। आगे चलो भाई, 2 बताइएगा। अगर 1 पे रिड्यूस NAD है तो 2 पे क्या होगा? खाली NAD होगा। NAD. ओ क्या बात है भाई, जबरदस्त। और 3 पे क्या होगा? कार्बन Ethanol. डाइऑक्साइड, इथेनॉल या इथेनॉल, Ethanol. इथेनॉल, इथेनॉल? AL वाला. AL वाला, इथेनॉल आ गया। और 4 पे क्या होगा? Ethanol. इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, 5th पे क्या होगा? ये बताओ जरा, 5th पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन क्या बात है भाई, जबरदस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। Decarboxylate होता है ना वो. हाँ, वो तो एंजाइम हो गया ना, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जी. ओके जी, सो डिस्क्राइब हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन मैमेलियन सेल डिफर फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भाई पता ही होगा वैसे तुम लोगों को, मैं सिर्फ सिंपलीफाई कर दूं इस चीज को भी, कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे मैमल्स के अंदर, सही है, तो लाइक वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड टू नो दिस थिंग कि भाई आपके पास C6H12O6 जो है वो स्प्लिट होके उसने बनाया 2 पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड्स जो थे उन्होंने जो है वो स्प्लिट होके बनाया लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में भी आपने एक इसको रिड्यूस्ड NAD दिया,
जिससे उसने खाली NAD बना दिया, and by the end of the day you're getting this lactic acid deposited in the muscle and causing pain. और इसको हटाने के लिए आपको एक certain amount of oxygen चाहिए होता है जिसको oxygen depth कहते हैं, सही है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। Explain why an aerobic respiration results in a small yield of ATP compared with the aerobic respiration. ये ऐसा सवाल है जिसके अंदर जवाब जहन में बहुत सारा होता है लेकिन बच्चे सही टर्म्स लिख नहीं पाते, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला सवाल भी आप लोग अटेम्प्ट करें प्लीज, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अगेन लाइक 1 मिनट। आई गेस 1 मिनट से कम ही लगेगा, 30 सेकेंड्स ले लो, सही है, 30 सेकेंड्स के अंदर करो ये जितना हो रहा है। ओके गाइस, बताओ जरा क्या आंसर बन रहा है तुम लोग के पास। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्मॉल एटीपी अमाउंट देती है, क्यों? बिकॉज सर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज एंड वाटर का, सो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली एनारोबिक से, बिकॉज कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, तुम ये बताओगे बेटा इसके अंदर कि कौन कौन से रिएक्शंस नहीं हुए, सही है। तुम बताओगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल नहीं होता है, तुम बताओगे कि इसमें लिंक रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ से बहुत एनर्जी मिल रही होती है, सही है। और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बताओगे, ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो पाती, असल यही है। फिर आप बताओगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें हो रही थी वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाती वो भी। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि सिंपल ग्लाइकोलिसिस हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, और लेकिन उसमें भी एक मसला है ना, उसके अंदर जो NAD रिड्यूस होके हमें मिला था, सही है, उससे सबस्ट्रेट लेवल थोड़ी हुआ है, वो जो NAD रिड्यूस होके मिला था वो तो यूज हो गया, यूज टू कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू, लैक्टिक या तो इथेनॉल बनाने में काम आ गया या फिर लैक्टिक एसिड बनाने में काम आ गया, सही है। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? हाँ सही है अली, मैं तुम्हारा जवाब पूरा पढ़ लिया। मैंने कुछ जो पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं वो तुम्हें 1-2 पॉइंट मिसिंग है, बाकी सारे तो सही हैं। 3 पॉइंट्स के हिसाब से तुम्हें ऑलरेडी पूरे पॉइंट्स मिल चुके होंगे इस जवाब पर। ये स्किप कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन और आगे चलते हैं भाई, आगे आगे आगे, और आगे क्या है हमारे पास। सर, इससे पहले जो आपने पास पेपर्स की वीडियो बनाई थी वो भी आपने पोस्ट की हुई है? बेटे वो और ये वीडियो और रेस्पिरेशन जैसे कंप्लीट होगा, आज कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो फिर वो सारी वीडियोस एक साथ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ओके। अच्छा जी, और सर वो WhatsApp कोऑर्डिनेशन में वो upload होगी। मिसिंग थी। सॉरी कौन क्या कह रहा है, दोबारा बोलो। सर कोऑर्डिनेशन में कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, वीडियोस का नहीं था उसमें, हाँ जैसे बेटा, I'll update that, and for like right now we are like discussing this particular topic, so we should stick to this one, okay? Okay. And like if you have like when you ever need to discuss anything out of the like course or out of the thing that we are doing, you can always discuss that on WhatsApp, okay? Okay. Chalo. So the component of a molecule of ATP adenosine triphosphate are shown in this particular figure.
बहुत सिंपल सी एक बात शो हो रही है कि ये एक आपके पास शुगर स्ट्रक्चर है, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर है, ये 1, 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप लग गए. So with a reference to figure 3.1, name the components 1, 2, 1 and 2. ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर एडेनिन है, ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है. अच्छा, हम ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये आपके पास जो है वो राइबोस है. तो मैं यही कहूंगा यार, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग स्किप करते हैं. Okay, let's talk about this one. इसका ही आई गेस पार्ट सी है. ओके, जो करना है पहले वही देखते हैं डायरेक्ट. Glucose is a respiratory substrate. Table 3.1 shows the yield of ATP from some other substrate. When you're talking about like alanine, जो कि आपके पास अमीनो एसिड कंपाउंड है, ग्लाइकोजन 39, यानी कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर मोल ऑफ सबस्ट्रेट ग्लाइकोजन से ज्यादा बन रहे हैं, लैक्टेट से 18 बन रहे हैं, पैल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है उससे सबसे ज्यादा बन रहे हैं, दैट इज 129. तो कैन आई एक्सप्लेन द डिफरेंट यील्ड्स ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोजन टू पैल्मिटिक एसिड. मैं चाहूंगा कि प्लीज ये सवाल जो है ना आप लोग जरा एक दफा देखो, इसका ऊपर वाले पोर्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक दफा ये वाला सवाल कर लें. कहाँ जाया जा रहा है? ओके, हियर यू गो. इसको एक दफा जल्दी से गो थ्रू करो और मुझे बताओ कि इसके अंदर तुम्हें समझ में आ रहा है, सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. जल्दी जल्दी से बताओ. इसमें जो तुम्हें समझाना है ना, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि पर मोल जब आप एनर्जी काउंट कर रहे होते हो ना, तो तुम बताओगे पैमेटिक एसिड के अंदर आपके पास दोबारा से वही वाली बात, ज्यादा जो लिपिड के अंदर हम लोग यूज, ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ज्यादा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ज्यादा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. तुम बताओगे कि जो हाइड्रोजन चाहिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए, कीमियो ऑस्मोसिस के लिए, ऑक्सीजन फॉस्फोरिलेशन के लिए, वो ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं. सही है. कौन? पैमेटिक एसिड देन ग्लाइकोजन. ठीक है, ये दोनों बातें हो गई रिलेटेबल. आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा. Describe the circumstances in which alanine and lactate are used as respiratory substrate. एलेनिन आ गया, लैक्टेट आ गया आपके पास. अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज हो रहे होते तो आप क्या इसमें डिस्क्राइब करोगे? सर आपकी आवाज लैग हो गई. अच्छा एक मिनट, इसका कहाँ गया? अच्छा जी, अब बेहतर है? Yes sir, it's fine. Okay, so it's asking that describe the circumstances in which alanine and lactate are used as respiratory substrate. Circumstances क्या होते हैं, मतलब क्या कंडीशन डेवलप होगी जिसमें तुम्हें एलानिन को तोड़ना पड़े या लैक्टेट को तोड़ना पड़े? ऑक्सीजन डेप्थ. ऑक्सीजन डेप्थ, जब ऑक्सीजन कम होता है लाइक बॉडी में. ऑक्सीजन डेप्थ तो नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग ये बोलेंगे कि आफ्टर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आता है. सही है. या मैं यूं बोलूं व्हेन रिसीव्ड ऑक्सीजन डेप्थ, या व्हेन ऑक्सीजन डेप्थ इज कंपनसेटेड. अच्छा, एलेनिन के लिए आप क्या कहना पसंद करेंगे? एलेनिन प्रोटीन का पार्ट है, कब टूटेगा? प्रोटीन कब टूटेगा? अफ्रीका के लोगों में प्रोटीन जल्दी टूटता है, क्यों टूटता है, क्या कंडीशन होती है? Weather.
नो बेटा, स्टारवेशन, खाने को नहीं मिलता। अच्छा हाँ, सही। भूख की वजह से जिसके हमें आप कहते हैं ना कि भाई प्रोटीन वेस्टिंग हो रही है, मसल वेस्टिंग हो रही है, मैरिस्मस हो जाते हैं, पतले पतले बच्चे होते हैं जो कि हड्डियां दिख रही होती हैं जिसम के ऊपर, पेट फूल जाता है उनका, सही है। क्वाशियोर जिसको हम लोग कहते थे, और क्या कहते हैं, मैरिस्मस कहलाती थी बीमारी, सही। तो ये स्टारवेशन है आपके पास, सिंपल सा, कि जब प्रोटीन टूट रहा है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा जो कि स्टारवेशन की पार्ट है, और फैट खत्म हो जाएगा बॉडी में, तो फिर आपके पास जाके प्रोटीन सर टूटेगा। लैक्टेट वाला वापस से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। लैक्टेट जो है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में डेवलप होता है और फिर मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि लैक्टेट टूटेगा कब? लैक्टेट तब टूटेगा जब ऑक्सीजन अमाउंट पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन डेप्थ पूरा हो जाएगा। सर ये सब बुक में होता है? बिकॉज ये तो लाइक इतना डिटेल में लाइक पढ़ा नहीं है। ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा दीज सही। आर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? ये केस स्टडी से बनेंगे, लाइक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन से बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप ही डिस्कशन के जरिए से हो सकते हैं, सही है। और डिस्कशन हम ऐसे तो बैठ के कर नहीं सकते, डिस्कशन हम इसी तरह से पास पेपर पर ही कर सकते हैं ना। सही है ठीक है। तो ये इसी से डेवलप हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका स्टारवेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है खुद ही पार्ट। सर, ये स्टारवेशन वाला पार्ट बता सकते हैं आप? इसे मैंने नहीं पढ़ा। स्टारवेशन मतलब बेटा भूख लगना। हाँ, लेकिन अलेनिन कैसे टूटता है स्टारवेशन से? प्रोटीन तो तब स्टारवेशन, टूटता है ना जब कोई एंजाइम या कुछ लेट हो। सपोज बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, सही है, लेट सपोज सारे के सारे फैट्स खत्म हो गए बॉडी के अंदर, बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में 10-15 दिन हो गए, बॉडी को कुछ खाने को नहीं मिला, सही है। तो ऐसा ऐसा प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा, मसल वेस्टिंग होगी, फिर मसल भी खत्म हो जाएंगे, प्रोटीन और कहीं और से टूटेगा, प्रोटीन खत्म हो गया बॉडी से, डेथ हो जाएगी। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी के सवाल वही होंगे सारे जो रिपीट हो के आ रहे होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोग जो है इसको एक ही वाला पार्ट कर लेते हैं। ये भी मैं ख्याल से तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई मसले की बात नहीं, बल्कि इसको भी छोड़ो। एक सवाल और था मेरे पास, यस, दिस वन कर तो ये भी लोगे आसानी से, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये कि मैं चाह रहा हूँ कि यार एक दफा जरा इसको देख लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस पार्ट। ये थोड़ा सा एक असल में डिफरेंट एलिमेंट है। वो पूछ रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, सही है, और पूछे सजेस्ट द फंक्शन ऑफ द डीएनए एंड राइबोसोम इन अ माइटोकॉन्ड्रियन। प्रोटीन्स बनाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया कुछ। एग्जैक्ट फंक्शन। राइबोसोमल राइबोसोमल प्रोटीन्स। देखो मैं तुम लोगों के ऊपर ये दो सवाल छोड़ रहा हूँ अभी, सही है। इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। पूरा तो खैर एक पेज पे नहीं आ पाएगा, पहले चलो ये वाला पार्ट करो, फिर दूसरे पे आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो डीएनए क्या करता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए एमआरएनए बना के देगा, डीएनए कमांड देगा प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसमें आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा उसको। इससे बनेगा क्या? असल बात ये बतानी है तुमने। तुम ये बताओगे यार इससे बनेगा हमारे पास रेस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है। इससे क्या बनेंगे हमारे पास? इससे बनेंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तीनों चीज हो गई, मैं लिख देता हूँ। रेस्पिरेटरी एंजाइम बनेंगे
जिस हिसाब से इन्होंने जगह दी हुई है तुम बकायदा पूरा प्रोसेस बताओगे कि भाई डीएनए ने पहले जो है ना अनकॉइल हुआ, उसका वो ट्रांसक्रिप्शन किया उसने, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो है उसने जो है वो मैसेंजर आरएनए बना दिया, मैसेंजर आरएनए जो है वो गया तो ये किसके तो पास, पूरा एएस राइबोसोम वाला के है। पास। हाँ एएस वाला, राइबोसोम के पास जाके उसने जो है वो वहां पे ट्रांसलेशन किया और ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना दिया। वही प्रोटीन क्या बना रहे हैं, वही प्रोटीन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बना रहे हैं। सवाल देखो ये एक दफा, अब इस सवाल को देखो फिर मुझे बताओ कि कर सकते हो या नहीं। और पहले तो ये बताना कि रीडेबल है या नहीं, पढ़ा जा रहा है। हाँ बच्चों बताओ, पढ़ा जा रहा है, सवाल कर सकते हो टाइम अभी। This would be the last question of this chapter. सर इस क्वेश्चन का अपर पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का अपर पार्ट ओके थोड़ा सा कट गया था यार। अब देखो अब पूरा क्वेश्चन आ रहा है, सही है। Oxidative phosphorylation takes place in mitochondria. Different stages of oxidative phosphorylation are listed below. They are not listed in the correct order. So, oxidative phosphorylation शदीद इश्क है एग्जामिनर को इस टॉपिक से, शदीद इश्क, सही है। तो ये आपको भी पसंद होना चाहिए। देखें जो एग्जामिनर की पसंद आपकी पसंद बन जाए तो फिर आपकी पसंद जो है वो एग्जामिनर की पसंद बन जाती है, सही है। तो यू है ना। टेक योर टाइम, अपने हिसाब से बताओ तुम ये 2, 3, 4 और 6, 7, 8 पे क्या आएगा। सर 2 पे एस होगा। अब लिखो, अपने पास लिखो, सारे लिखो। एस होगा वो तो सही है, लेकिन बाकी के पूरा सीक्वेंस लिख दो जो कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, वो लिख लो पूरा। ओके अली जरा क्यू को दोबारा कंसिडर करो। क्यू आर के बाद आएगा बिल्कुल।
ओके भाई, जरा मुझे बताओ कितने बच्चों ने सीक्वेंस लिख लिया अपने पास, कंप्लीट सीक्वेंस? अरे वाह माशाल्लाह, किसी ने भी नहीं लिखा अभी तक। सर बस दो में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। ओके सर, वेट करते हैं जरा, बाकी और बच्चे लिख लें, 2-4 और लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी। सर हो गया। ओके ओके जी बच्चों, मैं स्टार्ट करूं फिर? शुड आई स्टार्ट? यस सर, हो गया। यस। ओके जी, परफेक्ट है। अच्छा अब देखो जरा, सबसे पहले आपके पास आ गया है सीक्वेंशियली 1 पे इट्स वी क्या कह रहा है कि रिड्यूस एनएडी रिलीजेस हाइड्रोजन एटम टू साइटोक्रोम कैरियर्स। सही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद क्या आ सकता है? एस। एस। ओके, हाइड्रोजन एटम स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है? यू। 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 इलेक्ट्रॉन आर पास्ड फ्रॉम कैरियर टू कैरियर। उसके बाद डब्ल्यू। energy from electron transfer is used to pump proton into their intermembrane। देखो ना भाई, आपने क्या किया, हाइड्रोजन दिया, फिर वो बोला हाइड्रोजन को तोड़ा, फिर वो बोला हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको कैरियर टू कैरियर आपने प्रमोट किया, फिर वो क्या होगा, करेगा क्या भाई, उससे हुआ क्या, एनर्जी जो थी इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन के पंप के अंदर जिसमें वो मूव कर रहा था, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में था, तो डब्ल्यू आ गया। ये बड़ा आसान है, इतना बिला वजह तुम लोग टाइम लगा रहे थे। मैं समझा वाकई में भाई, बहुत ज्यादा की मुश्किल चीज हो गई। आर। क्यू। इसके बाद आर गिवन है, उन्होंने दिया हुआ पहले से। इसके बाद आर के बाद क्या, आर कह रहा है क्यू। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज सेट अप अक्रॉस द क्रिस्टा। सही है। अब उसके आगे की सीक्वेंस बताओ अब आप। तो भाई अगर उसके आगे आप देखेंगे कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिस्टा के अंदर सेटअप हो गया, यानी कि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है ना, उसके अंदर जो है ना प्रोटॉन जाना होता है। सही है। तो आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आ जाना चाहिए प्रोटॉन डिफ्यूज थ्रू द चैनल क्यू। इनटू द मैट्रिक्स। क्यू। पहले मैट्रिक्स में जाएगा। अब अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? अल्टीमेटली तो भाई उसने जो है वो, आप ये समझ ले कि कंबाइन हो जाना है ना टी। वाटर और मॉलिक्यूल के साथ, जो बच टी। रहा है हमारे पास, उसमें वो शो टी कर एंड रहा है कि एक्स। उसने कंबाइन हो जाना है। लेकिन कंबाइन होने से पहले वो एटीपी सिंथेसाइज तो करेगा ना, एक्स। सर पहले तो इट विल बी एक्स पहले एटीपी और फिर सिंथेसिस। टी बाद में। जी। ओके। सही है। ओके गुड, ठीक है। ये बताओ, इस कंफ्यूजन है इसमें कोई, किसी को कोई क्वेरी, किसी का कोई सवाल इसमें कि भाई ये सर कैसे क्या नहीं। कर दिया? नहीं सर, क्लियर है। ओके जी, परफेक्ट है, सर पूरी परफेक्ट। सीक्वेंस लिख दें। पूरी सीक्वेंस लिख दी ना, वी एस यू जी जी डब्ल्यू। जी, सॉरी मैंने नहीं देखा। ओके। अच्छा जी, तो फिर आज की हमारी पॉसिबल क्लास यहीं तक रखते हैं। सवाल बहुत सारे हैं माशाल्लाह से। अब अगले सेशन के लिए मुझे आप लोगों को मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता सर हूँ कि हम लोग कब सर का ये टाइम पास्ट पेपर्स रखेंगे, का। और फिर जो है हम लोग उसको लाइन अप करते हैं चीज़ों को। अगला पॉसिबली जो है ना वीकडे के अंदर ही कोई सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे
मैंने जो अपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, आई नीड टू कंप्लीट ऑल द पास्ट पेपर्स टिल कोऑर्डिनेशन बिफोर जनवरी, ठीक है।